Hello students. So today's our first topic is refraction of light. Clear? In the previous video we have discussed about the reflection of light, reflection through the spherical surfaces, concave, convex lenses, mirror formula and magnification. So today's our first topic is refraction of light. Refraction meaning when a light goes from one medium to another, change its path is known as refraction of light. So we will understood it by drawing a diagram. We will take an example. We draw a line. This is a line. We say that there is a surface. One medium is this is air. Another medium here we say that water. Clear? This is a surface which separate the two medium. So there come a ray of light. We say that this is a ray of light which fall on this plane which separate the two medium. So as we know that light travel in straight line. So this light have to be travel in straight line like this. But when this light move from one medium to another medium, it changes its path. So how we'll see it? We will draw here a normal. This is a normal which is perpendicular to the surface. This is your angle of incident. The actual path of light is that light have to travel in straight line. But due to the refraction of light changes its path. So now this is the path of the light. Clear? This is your refracted ray. And this angle is known as angle of refraction, which is represented by R. So what we have seen here, a ray of light coming from any light emitting object, clear, and that light is first traveling air, then it travel in water. So when this light move from air to water, so this light change its path. एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लाइट का ये, लेकिन लाइट ने अपना पाथ चेंज कर लिया. इस फिनोमेना को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. क्लियर? सो अब हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा कि दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे. Incident ray, clear, and this ray is known as refracted ray, clear, and this is known as normal, clear, and this is a plane which separate the two mediums. So here what we have seen that light move from or goes from air to water, and when light move from air to water it changes its path. The phenomena through which light changes its path when it passes through one medium to another is known as refraction of light, as we have discussed earlier. So when a light goes from one medium to another medium, it changes its path is known as refraction of light. So by this diagram we have understood it. Now next, here is the law of refraction. There is a two law of refraction, laws of refraction. Clear? First law state that the incident ray, the refracted ray and the normal lie on the same plane which separate the two medium. What is the first law? Incident ray, refracted ray and normal lies on the same plane which separate the two medium. मीन्स पॉइंट यहाँ पे है बेटा कि जो आपकी इंसिडेंट रे होगी, जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी और जो आपका नॉर्मल होगा, वो तीनों के तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेंगे या एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. वो प्लेन वो है जो दो मीडियम को क्या करेगा? सेपरेट करेगा. अब दो मीडियम कौन से हैं? जैसे यहाँ पे एयर और वाटर है, ऐसे आपका वाटर और ग्लास हो सकता है, एयर और ग्लास हो सकता है. तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि व्हेन लाइट goes from one medium to another medium, it changes its path. The phenomena is known as refraction, and the first law of refraction that the incident ray, the refracted ray and the normal lie on the same plane, and that plane is a plane which separate the two mediums. So this is your first law. So now what is second law? Second law state that sine of angle of incident divided by sine of angle of refraction is equal to constant.
क्लियर, कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन लेते हैं, जैसे ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो अगर इनके हम साइन लेते हैं तो दैट साइन कम्स आउट इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट बाय एन एंड दिस एन इज नोन एज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। क्लियर, दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर एंड दिस साइन आई बाय साइन आर इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ। इसको हम स्नेल लॉ के नाम से भी जानते हैं। वन मे बी इन एग्जाम 1 मार्क्स क्वेश्चन में बी आस्क्ड कि व्हाट इज स्नेल लॉ। तो स्नेल लॉ जो होगा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेल लॉ भी कहते हैं। तो ये आपकी एक्सप्लेनेशन थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की, रिफ्रैक्शन क्यों होती है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे बेटा। रीजन और कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो द फर्स्ट रीजन की जो पहला कारण है कि रिफ्रैक्शन होने का, वो कारण है बेटा चेंज इन द स्पीड, चेंज इन द स्पीड। अब चेंज इन द स्पीड का मतलब है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट्स स्पीड चेंजेस, उसकी स्पीड क्या करती है, चेंज करती है। अब स्पीड चेंज क्यों करती है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम और डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब यहाँ पे रेयर और डेंसर क्या है, यहाँ पे हमने देखना है कि व्हाट इज रेयर मीडियम। सो चेंज इन द स्पीड, नाउ वी विल डिस्कस हाउ स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एवरी मीडियम आर क्लासिफाई into two way, rare medium or denser medium, rare and denser. What are the rare medium and what are the denser medium? Rare medium are those medium in which particle are separated by large distance. Particle have large distance. For example, air is an example of rare medium. Denser medium are those medium in which particle have small distance. Example we will say here, we can say that glass, water. Clear, these are the example of denser medium. So what happen when light goes from rare medium to denser medium or denser medium to rare medium? So if we take an example, for example कि here is air and here is water. So when light coming from air, clear, and it enter into the water, so this medium is rare. Here the light speed is high, speed of light is high. But when this light enter in water, the speed of light decreases. Speed of light क्या करेगी, decrease करेगी. And when the speed of light decreases, light changes path. The actual path of light is this, but due to refraction of light, light bend. So point यहाँ पे समझना है कि when light goes from rare medium to डेंसर मीडियम, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, उसकी जो स्पीड है दैट डिक्रीजेस, स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी. सो व्हेन इट्स स्पीड डिक्रीजेस द लाइट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड नॉर्मल. अगेन व्हेन द लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, जब लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो इन दैट केस its speed increases. So here I'm writing when light goes from denser to rare, जब लाइट क्या जाएगी डेंसर से रेयर, जो स्पीड है लाइट की वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. स्पीड ऑफ लाइट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. एंड द लाइट जो होगी आपकी वो क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल. अगर इसी डायग्राम को हम लेते हैं कि अब जो ये लाइट है ये आपकी आ रही है डेंसर से रेयर में, तो इस लाइट को ऐसे जाना था, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये जो लाइट थी ये बेंड करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो रीजन बिहाइंड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. और जो स्पीड में चेंज आता है वो इसलिए आता है कि कुछ मीडियम रेयर होते हैं, कुछ मीडियम डेंसर होते हैं. जो मीडियम रेयर होते हैं वहाँ पे स्पीड इंक्रीज करेगी और जो मीडियम डेंसर होते हैं वहाँ पे स्पीड क्या करेगी, आपकी डिक्रीज करेगी. सो दिस इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. ये आपके कॉज है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. अब हम कुछ डेली फिनोमिनास जो हमारे चारों तरफ होते हैं बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उनको हमने डिस्कस करना है वन बाय वन. क्लियर. जो आपका फर्स्ट फिनोमिना है
the first phenomena is that a coin placed at the bottom of a bucket filled with water appear to be rise, कि वो ऊपर की तरफ दिखाई देता है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझेंगे कि वी से दैट कि दिस इज अ बकेट, ये एक बकेट है वाटर की, क्लियर। दिस इज फील्ड विद वाटर, ये फील्ड की गई है वाटर के साथ, लाइक दिस। सो अ कॉइन इज प्लेस एट द बॉटम, यहां पे कॉइन रखा हुआ है, क्लियर। सो फ्रॉम दिस कॉइन इफ वी से दैट कि दिस इज अ रे ऑफ लाइट, एक यहां पे गई रे ऑफ लाइट और दूसरी रे ऑफ लाइट यहां पे चली गई। सो नाउ दिस इज अ पार्ट विच सेपरेट द टू मीडियम, तो हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, क्लियर। सो वी नो दैट दिस वाटर act as a denser medium, here is a air which act is a rare medium. So when light goes from denser to rare, एक्चुअल में लाइट ने आपके सीधा जाना था ऐसे, क्लियर, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट लाइट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये ऐसे बेंड कर गई या इधर से ये ऐसे बेंड कर गई। अब यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देखेगा, उसको जो ये लाइट दिखाई देगी, दिस लाइट, उसको लगेगी दैट लाइट इज कमिंग स्ट्रेट, क्योंकि लाइट ट्रेवलिंग स्ट्रेट लाइन। सो वी विल एक्सटेंड दीज रे ऑफ लाइट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, सो दिस कॉइन विच इज एट द बॉटम ऑफ द बकेट अपीयर टू बी राइस, ये कॉइन यहाँ पे दिखाई देगा। तो एक फिनोमिना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ऐसे ही जो लेमन होते हैं, आपने जो जूस कॉर्नर देखे होंगे, उनके बाहर पानी के गिलास के अंदर लेमन डाल रखे होते हैं, वो लेमन आपको बड़े बड़े दिखाई देते हैं, स्वोलन दिखाई देते हैं, दिस इज आल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये कुछ फिनोमिना है जो डेली लाइफ में हमारे चारों तरफ होते हैं, विच इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो नेक्स्ट अपना था रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिस्कस हियर कि व्हाट इज अ ग्लास स्लैब। एक्चुअल में जो ग्लास स्लैब है एक पीस है ग्लास का, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ अ ग्लास विच हैव सम थिकनेस, और वी कैन से दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड की फॉर्म में है जो ग्लास का बना हुआ है। So now we have to see that कि how refraction occur when light goes from glass slab. So first we draw a diagram here. From this diagram we will understood कि how refraction occur through a glass slab. So first of all we will take a glass slab. We place that glass slab on a paper, clear, and mark is A, B, C and D. So this is any glass slab, rectangular glass slab. Clear. So now this glass slab is placed on a page in paper, white paper, and we will place two pins on the side of face AB like this. These are the two pins. This say that this is pin P1 and this is pin P2, and these two pin are seen through the face CD. इन दोनों पिन को AB के सामने रखना है और CD के थ्रू देखना है। CD के थ्रू देखते हुए आपने दो पिन और लगानी है on the side of CD in a such a way that कि pin P1, P2, P3 and P4 comes out to in straight line when you see through a glass slab। जब ग्लास स्लैब के थ्रू देखोगे तो ये सारी स्ट्रेट लाइन में होंगी, लेकिन जब ग्लास स्लैब को यहाँ से हटाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगी, क्लियर। तो हमने क्या कहा कि अगर ये पिन आपकी ये आ गई इधर, कि हम कह देते हैं कि दिस इज योर पिन P2, P3 एंड दिस इज योर पिन P4, ये आपकी पिन आ गई। When we see these pin through a glass slab, all these 4 point comes into the straight line, but when we remove the glass slab, these points are not in the straight line. So now we will join these point to the face. We join these point to the face AB like this, and these 2 point to the face CD. We say that कि these 2 point or these line which join this is meet at point L, and here is meet at L point M. So now draw the normal to the point L and M to find the angle of incident and to find the angle of refraction. Clear? So now join these 2 point L and M को join करवा देते हैं ऐसे, clear? So this is your angle of and this is your angle. One angle is this and this is another angle.
So this angle is known as angle of incident. This angle is known as angle of refraction, and this angle we say that this is R2, but for that phase this angle is angle of incident, and this is known as angle of emergence. बट वी नो दैट कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, की जो आपकी लाइट है वो किस में चलती है भाई, स्ट्रेट लाइन में चलती है। तो हम यहाँ से इस लाइन को सीधा स्ट्रेट एक्सटेंड करेंगे लाइक दिस। सो जो ये था, दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट एंड दिस इज द रिफ्रैक्टेड पाथ ऑफ लाइट। तो लाइट के एक्चुअल पाथ और रिफ्रैक्टेड पाथ के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और कई बार इसको लेटरल शिफ्ट भी कह दिया जाता है। सो दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड पाथ ऑफ लाइट, and this is your angle of incident, this is your angle of refraction. For this phase R2 is the angle of incident and angle E is the angle of emergence. क्लियर। तो हमने यहाँ पे पॉइंट क्या नोट किया कि जब लाइट आपकी किसी ग्लास स्लैब से जाएगी उसके पाथ में चेंज आएगा, तो जो एक्चुअल पाथ होगा और जो रिफ्रैक्टेड पाथ होगा उनके बीच के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और सिंपली हम ये कह सकते हैं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे, की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आपकी कौन सी रे थी, ये आपकी इंसिडेंट रे थी, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर इमरजेंट रे, इसलिए यहाँ पे ई लिखा है। तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको हम बोलेंगे लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दिस इज योर 1 मार्क्स डेफिनेशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसको आप कॉपी पे लिखोगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट रे लिख सकते हो, या लिख सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्चुअल पाथ ऑफ द लाइट एंड एक्चुअल पाथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टेड पाथ ऑफ लाइट इज नोन एज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। इसके बेसिस पे एक और हमने प्रूव करना है, उसको हम बाद में प्रूव करेंगे। अब इसके बाद आपका आता है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है? अब रिफ्रैक्टेड इंडेक्स एक नंबर है, इट इज जस्ट अ नंबर। ये एक नंबर है जो हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हाउ मच द स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। फॉर एग्जांपल कि जब लाइट एयर से वाटर में गई या वाटर से एयर में गई, उसकी स्पीड में कितना चेंज आया, जो हमें बताएगा उसको हम रिफ्रैक्टेड इंडेक्स कहते हैं। तो व्हाट इज रिफ्रैक्टेड इंडेक्स? रिफ्रैक्टेड इंडेक्स टेल अस अबाउट दैट कि हाउ मच द टेल अस us about that how much speed of light changes when it goes from one medium to another, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन और इट इज रिटन बाय एन, जो हम पहले भी लिख के आए थे, इसको हम एन से लिखते हैं। तो एन आपका है रिफ्रैक्टेड इंडेक्स, और इन सम टाइम इट मे बी रिटन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इट इज रिटन बाय एन। इट इज अ टू टाइप, ये दो तरह का आपका होता है। एक आपका होता है एब्सोल्यूट, वन इज योर एब्सोल्यूट, अनदर इज नोन एज रिलेटिव। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट। पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? एब्सोल्यूट को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो पहले हमने इसको डिस्कस करना है
कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट, इसको करेक्ट कर लो, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स क्या है? अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इज रिप्रेजेंट बाय एन, एक्चुअल में इट इज द रेशियो ऑफ सी बाय वी। अब व्हाट इज सी हियर? सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम and v is the speed of light in medium. So what is absolute refractive index? Absolute refractive index is the ratio of the speed of light in vacuum to the speed of light in medium. So this is known as absolute refractive index. So if we want to find the unit of n, so n have no unit बिकॉज इट इज जस्ट अ नंबर। ये आपका एक नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंड अनदर पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ सी इज फिक्स, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो वट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव गिवन सी इज ऑलरेडी गिवन, या तो आपको v दिया होगा n निकालना है, या n दिया होगा तो v निकालना है। तो दिस इज नोन एज एब्सोल्यूट। इसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। जो दूसरा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने डिस्कस करना है वो है रिलेटिव। कौन सा आपका? वो रिलेटिव। तो व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? दिस वी हैव डिस्कस। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या है रिलेटिव? बेटा ये नाम से क्लियर, रिलेटिव। रिलेटिव मीन्स वी विल रिलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ one medium with respect to another is known as relative refractive index. So if we have two medium 1 and medium 2, अगर हमारे पास दो मीडियम है, एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम आपका 2 है, तो if we want to find the relative refractive index, क्लियर? सो अगर आपका इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, तो अगर मैं यहां कह देता हूं रिलेट करते हैं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू, तो इसको मैं लिखूंगा n12 मीन्स रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट सेकेंड। सो दिस इज रिटन बाय n1 अपॉन में n2। क्लियर? सिमिलरली द रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकेंड विद रिस्पेक्ट फर्स्ट इज रिटन बाय n2 अपॉन में n1। मीन्स अब हमने क्या कर दिया कि दो मीडियम के रिफ्रैक्टेड इंडेक्स को हमने क्या कर दिया? रिलेट कर दिया, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव। अगर आपकी ये इक्वेशन 2 थी, अगर मैं इस इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो n12 इंटू में n21, जब इधर लिखेंगे तो n1 अपॉन में n2 इंटू में n2 अपॉन में n1, तो ये सारे आपके कैंसिल हो गए, तो n12 इंटू में n21 इज इक्वल टू 1। मीन्स दो मीडियम के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल आएगा। अब इसको समझते हैं कैसे। अगर मैं कह देता हूं रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये एग्जाम्पल लिया बेटा अपा ने, से दैट 5/4 कि ये 5/4 है, और इसको मैं लिख दिया रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ वाटर, तो इसको मैं लिख दिया n ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट एयर, इसको मैं लिख दिया NWA। तो अगर मैंने अब रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट वाटर निकालना है, हमारे पास वाटर विद रिस्पेक्ट एयर है, हमने क्या निकालना है? एयर विद रिस्पेक्ट वाटर। तो सिंपली हमने जो ये टर्म है इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल, तो ये कम आउट टू बी 5/4। अब कहीं ना कहीं यहीं से समझना है आप लोगों ने इसको कि आपके पास NWA इंटू में NAW की वैल्यू 1 है। क्लियर? आपको NWA पता था 5/4, तो जब मैं यहाँ पे 5/4 लिख दूंगा और मेरे को NAW चाहिए, तो ये 5/4 टर्म थी, उठ के इधर जाएगी तो इधर जाके बन जाएगी 4/5। तो यहाँ पे यह बेटा कि अगर हमें एक मीडियम का रिफ्रैक्टेड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है
किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, अगर हमने दूसरे का निकालना है उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में, तो हम जस्ट क्या कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे. सो दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इन द फॉर्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ स्पीड. वो कैसे लिखेंगे, इसको हम इधर ही कर देते हैं साइड में. एज वी नो दैट कि जो आपका n है वो c/v है, तो जो ये n1 की वैल्यू होगी यहाँ पे n1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा v1. सिमिलरली जो n2 होगा वो क्या होगा, वो होगा c/v2. क्या होगा वो, c/v2. तो अगर मैं यहाँ पे n1 की और n2 की वैल्यू पुट करता हूं तो क्या आएगा, तो आप देखोगे n12 इज इक्वल टू क्या होगा, हियर कम्स आउट टू बी c/v1 डिवाइड बाय c/v2. तो c के साथ c आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया. अब जो ये v2 था आपका, ये ऊपर चला जाएगा और v1 नीचे आएगा. तो जो n12 आया आपका, दिस कम्स आउट टू बी v2 अपॉन में v1. मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव स्पीड. ये किसकी फॉर्म में है, रिलेटिव स्पीड की फॉर्म में है. अब इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है बेटा, इसको समझना n12 क्या था आपका, n1 अपॉन में n2. तो हमें पता है कि जो n है वो c/v है. तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है तो उस मीडियम की वेलोसिटी कहाँ होगी, नीचे होगी. अब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 कहाँ है, ऊपर है, तो इस मीडियम की जो वेलोसिटी है वो नीचे होगी. और इस मीडियम का n2 कहाँ है, नीचे है. अगर n2 नीचे है तो उसकी वेलोसिटी कहाँ होगी, ऊपर होगी. तो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ टू मीडियम. क्लियर. तो अब हम आपका वापिस चलते हैं ग्लास स्लैब के ऊपर. ग्लास स्लैब की हमने एक रिलेशन देखनी है जो आज आपका टॉपिक होगा लास्ट. इसके बाद हमने एक दो क्वेश्चन डिस्कस करना है बस. अब हम आ जाते हैं फिर से ग्लास स्लैब के ऊपर. अब ग्लास स्लैब को देखते हैं हम. यहाँ पे हमने एक रिलेशन निकालनी है बेटा. अब जो n हमने निकाला है वो हमने तीन तरीके से निकाले. एक n आपका है c/v की फॉर्म में, एक n आपका है n1 अपॉन n2 की फॉर्म में, n12 लिख दिया इसको, या आपका v2 अपॉन में v1 की फॉर्म में. और एक n हम पीछे लिख के आए थे, वो था साइन i बाय साइन r, जो हमारा आया था स्नेल लॉ से. क्लियर. तो अब हमने यहाँ पे वो वैल्यू निकालनी है. तो इफ वी से दैट कि यहाँ पे अगर आपका मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, ये मीडियम 2 इसका n2, और ये फिर से यहाँ पे मीडियम 1 आ गया. तो अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे स्नेल लॉ अप्लाई करेंगे. तो पहले मैं निकाल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2. लाइट कहाँ जा रही है, 1 से 2, तो 2 का निकाल लेंगे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में. तो लिख दिया n21. तो ये आपका आ जाएगा साइन i डिवाइड बाय साइन r1. ये एंगल की फॉर्म में लगा दिया भाई, यहाँ पे ये एंगल r1 था. फिर जब लाइट आपकी कहाँ जा रही है, n2 से n1 जा रही है, तो जिसमें से लाइट आती है और जिसमें जाती है उसके रिस्पेक्ट में हमने निकालना है. सो अब जैसे यहाँ पे लाइट मीडियम फर्स्ट से सेकंड में आई थी, तो हमने फर्स्ट का निकाला सेकंड के रिस्पेक्ट में. अब सेकंड से कहाँ जा रही है, फर्स्ट में जा रही है. क्लियर. तो अब हम इसका निकाल लेंगे इसके रिस्पेक्ट में. तो अब यहाँ पे लिखा जाएगा n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू. क्लियर. तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी आपकी साइन, ये एंगल क्या है यहाँ पे r2, तो आ जाएगा साइन r2 डिवाइड बाय साइन e. अब हमने इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना. तो यहाँ पे आ जाएगा n21 इंटू में n12 इज इक्वल टू साइन i डिवाइड बाय साइन r1 इज इक्वल इंटू में साइन r2 अपॉन में साइन e. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से इन दोनों को खींचते हैं नॉर्मल, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. क्लियर. ये आपका एंगल और ये आपका एंगल, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये r1 और r2 आपके क्या है, इक्वल है. तो इस r2 की जगह मैं r1 लिख सकता हूँ. ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया. और अभी हम थोड़ी देर पहले प्रूव करके आए थे कि दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 होगा. तो अगर इसका प्रोडक्ट 1 है तो यहाँ पे आपका आ गया साइन i अपॉन में साइन e. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकली, यहाँ से कंक्लूजन निकली बेटा कि हम साइन i इज इक्वल टू हो जाएगा साइन e. मीन्स इस e को उठा के इधर लेके चले गए, तो ये बन गया साइन i को. तो दोनों साइड से हमने साइन साइन छोड़ दिया, तो यहाँ पे आ गया i इज इक्वल टू e. मीन्स यहाँ से रिलेशन आई कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस होता है ग्लास स्लैब के लिए. ठीक है, ये हमने प्रूव किया था. अब इससे रिलेटेड आपके एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों को हमने देखना है. वो क्वेश्चन क्या है आपके. अब क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, यू हैव गिवन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, यू हैव टू फाइंड दैट कि इन विच मीडियम स्पीड इज हाई एंड स्पीड इज लो.
तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको उन्होंने 2-3 मीडियम दे दिए, फॉर एग्जाम्पल एयर दे दिया, आइस दे दिया, वाटर दे दिया और दे दिया आपको ग्लास, क्राउन ग्लास। तो यू हैव गिवन 3 मीडियम्स, फर्स्ट इज एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ एयर 1.003, ये एयर का होता है। उसके बाद आपको दे दिया वाटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर इज 1.33, आफ्टर दैट देर इज गिवन अ आइस, तो जो आइस है उसका दे दिया आपको 1.31 एंड वन मोर वी विल टेकन हेयर दैट इज रूबी, इट्स रिफ्रैक्टेड इंडेक्स इज 1.71। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ये सब किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू है, एन ऑफ एयर, एन ऑफ वाटर, दिस इज एन ऑफ आइस एंड दिस इज एन ऑफ रूबी। सो क्वेश्चन आपको यहां से पूछा जाएगा कि इन विच मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, कि किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होगी और किस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, मिनिमम होगी। तो यहां से हमने इसको समझना कैसे है, वी हैव अ फॉर्मूला एन इज प्रोपोर्शनल टू सी बाई वी। तो ये एन और वी के अंदर जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स ज्यादा होगा उसकी स्पीड, उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो अगर इनमें सबसे बात देखा जाए कि सबसे ज्यादा किसका है, रूबी का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स मींस एन ऑफ रूबी इज ग्रेटर देन एन ऑफ वाटर, फिर एन ऑफ वाटर किससे ज्यादा है, एन ऑफ आइस, और फिर सबसे ज्यादा कम किसका है, एन ऑफ एयर। तो इस सबसे हमने क्या समझा कि रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अगर रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो रूबी में स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये आपने एक रिलेशन समझनी है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी का मीनिंग है कि कौन सा मीडियम डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकल डेंसर नहीं है। तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, ऑप्टिकल डेंसिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगी। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लार्ज है, क्या है, लार्ज, क्या, एन, हुज ऑप्टिकल डेंसिटी इज आल्सो लार्ज, मीन्स जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ज्यादा है, उतना ही मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। अब समझना कैसे है इसको, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज्यादा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो लार्ज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, लार्ज है। अब इसको समझते किससे हम लेते हैं एग्जांपल डायमंड का। हम अगर डायमंड को लेके चलते हैं, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है 2.42। तो अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो डायमंड के अंदर जो स्पीड होगी दैट इज लोएस्ट। तो अगर स्पीड लोएस्ट है, स्पीड कब लोएस्ट होगी, जब पार्टिकल क्लोज होंगे। जब पार्टिकल क्लोज होंगे इसका मतलब वो मीडियम क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। तो ये हमने पॉइंट को समझना है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम। मींस अगर मैं यहां पे सीधा लिखता हूं n इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ऑप्टिकल डेंसिटी। अब इसके बेस पे आपके एनसीईआरटी के 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल इन एयर एंटर ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट ऑफ रे बेंड टूवर्ड द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये आपका है पेज नंबर 176 के ऊपर क्वेश्चन, 176 एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक लाइट है जो एयर से आ रही थी, कहां से आ रही थी, एयर से, ये एयर है, और कहां गई, वाटर में गई। अब आपसे पूछ रहा है जो एयर है वो एक रेयर मीडियम है और जो वाटर है वो एक आपका क्या है, डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट रेयर से कहां जाएगी, डेंसर में जाएगी, तो उसकी स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जब स्पीड डिक्रीज करेगी सो लाइट ने जाना सीधा था बट इट बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो ये आपका था पहला क्वेश्चन पेज नंबर 176 के ऊपर। इसके बाद हमें देखना है क्वेश्चन नंबर 2।
ऑन पेज नंबर 176। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 है 176 के ऊपर, उसको रीड करते हैं। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? कह रहा है अ लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, कि जो ग्लास है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, मतलब ग्लास का जो आपको n दे दिया, ग्लास का क्या दे दिया आपको n। तो जो ग्लास का n है आपके पास, द वैल्यू ऑफ ग्लास ऑफ n, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2, कि जो 2 है उसके लिए n दे दिया 1.5। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, मीन्स वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ग्लास में स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास फॉर्मूला n होता है c/v। क्लियर? तो हमें c की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, v हमने फाइंड करना। अब v यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो हम क्या करेंगे, इस v को यहां रख लेंगे, c आपका आ जाएगा n नीचे, c तो आपका 3 × 10⁸, n आपका कितना है 1.5, ये कट के 2 आ जाएगा, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कह रहा है फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल 10.3 द मीडियम हैव द हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी एंड आल्सो फाइंड द मीडियम विच हैव द लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे, क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ चुके हैं, कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का वो है आपका 1.003 स्मॉलेस्ट, और जो आपका डायमंड है इसका है 2.42। तो आपको बताना है कि विच इज ऑप्टिकल डेंसर एंड विच इज ऑप्टिकल रेयर, कि कौन सबसे ज्यादा रेयर है, कौन सबसे ज्यादा डेंसर है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, तो एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। फ्रॉम फॉर गिवन कैरोसिन, टर्पेटाइन एंड वाटर, आपको कैरोसिन, टर्पेटाइन और वाटर दे दिया। इन विच ऑफ दीज टू द लाइट ट्रेवल फास्टर। अब बेटा जो लाइट है वो किस में फास्टर ट्रेवल की, तो हमें पता है एन की रिलेशन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एन की रिलेशन क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा उसमें स्पीड क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो अगर हम इन तीनों में देखते हैं टेबल के अंदर से, तो जो आपका वाटर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है 1.33। वाटर का कितना है 1.33, इसका मतलब वाटर में स्पीड सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्वेश्चन नंबर 5 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। कह रहा है इस स्टेटमेंट से आप क्या समझते हो। इस स्टेटमेंट का मीनिंग यह है बेटा कि जब भी लाइट डायमंड में आए या डायमंड से जाए, मीन्स व्हेन अ लाइट एंटर इनटू द डायमंड और व्हेन लाइट लीव द डायमंड, सो उसकी स्पीड के अंदर इतने टाइम क्या आएगा, चेंज आएगा। मीन्स द, अब सिंपल बात है, डायमंड डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट आपकी किसी एयर से डायमंड में आएगी, व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू डायमंड, इट्स स्पीड डिक्रीजेज 2.42 टाइम। सिमिलरली व्हेन द लाइट इज लीविंग द डायमंड, जब लाइट आपके डायमंड को लीव करके एयर में जाएगी तो उसकी स्पीड 2.42 टाइम क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो यहां तक आज हमारा हो गया है। ये आपका एक पोर्शन था जो हमने डिस्कस कर लिया, दिस इज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट पार्ट में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, वेरियस टाइप ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स एंड कनकेव। तो इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है, अगर कहीं पे किसी तरह कोई डाउट है उस डाउट को पूछना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर कर सकें। तो वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को पूरा देखने के बाद वीडियो के ऊपर कमेंट करना है अपना नेम। क्लियर? जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनका हमने स्कूल में ये डिस्कस हो चुका है, लेकिन जो नहीं आ रहे उनके लिए ये वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से देखना है, देखने के बाद एट द एंड कमेंट बॉक्स में अपना नाम कमेंट करना है। दिस इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू।